So 3 days after the Lok Sabha Speaker expunged parts of Rahul Gandhi's speech, there is no end to the political war of words over the move. क्योंकि अगर सीधे तौर पे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बोला है कि ये एक अटैक है डेमोक्रेसी पे। कांग्रेस ने ये डिमांड रखी है कि जो स्पीकर है वो अपने डिसीजन को एक बार फिर से रिकंसिडर करें, उसको एक बार फिर से रिव्यू करें। क्योंकि अगर हम एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की बात करें तो जो कांग्रेस की जो लीडर है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है स्पीकर को और ये बोला है कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला था पार्लियामेंट में, संसद में, वो सब फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड था। अगर जहां तक हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें, राहुल गांधी ने जो उस पर बयान दिया था पार्लियामेंट में, उसको लेकर काफी कुछ पॉलिटिकल चर्चा होने लगी। और कांग्रेस ने ये भी बोला कि अडानी ग्रुप जो है उन्होंने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है, ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे। तो कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो मेजर पोर्शंस थे उस स्पीच के जो राहुल गांधी ने दिए थे उनको रिमूव कर दिया गया है, पर वो जितने भी जो उन्होंने बयानबाजी की संसद में वो सारे फैक्ट्स के ऊपर आधारित थे। और कांग्रेस ने सीधे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी साइट किया अपना जो है पक्ष रखते हुए, और उन्होंने ये बोला कि पूरी स्पीच जो है वो पब्लिश करी जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि क्या कुछ अभी इस समय कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है। Our stand is so simple, so democratic. All that we are asking is an Edinburgh report came, which threw few allegations against our regulatory systems or our few companies, and they were so serious that next day, very stock exchange crashed. Our same companies of which he talked. So we said, what exactly various things have gone? It is in crores. It is not in lakhs. It is in crores. So we wanted, very first day, let us have some kind of a probe by JPC. Because your own man will be there. After all, you are in majority in the house. Your man will be there. Our man will be there. We will find out whether the regulatory systems have failed us or regulators have failed us. This we will come to know. देखो, एक्सपेंज करना वो सभी रूल्स देखकर करना पड़ता है। हमने भी उसकी छानबीन की है, कौन सा एक्सपेंज वो नहीं कर सकते और रूल्स के तहत किस चीज को, किस शब्द को हटा नहीं सकते, उसका विस्तार से मैं 3 पेज में उनको रिप्लाई दिया हूं। वो देखने के बाद शायद वो सेटिस्फाई हो जाए। Now there's nothing unparliamentary in what Mr. Rahul Gandhi, what Mr. Kharge, what Mr. Digvijay Singh raised in Parliament. So I'm not taking this up with the chair or with the speaker. Will you be talking about this entire matter, how the opposition speeches are being expunged? We'll certainly raise it, but you know, we know where the orders are coming from. You know, the Prime Minister himself has been forced in the past to expunge his own remarks. And we forced him. Yes. And I think you know, this is censorship, you know, of Parliament. Nevertheless, the saving grace is what Mr. Rahul Gandhi said, what Mr. Kharge ji said, what Mr. Digvijay Singh said is already available in the public domain. तो देखिए, अगर नियमों की बात करें तो उसके मुताबिक जो स्पीकर हैं उनके पास ये राइट है कि वो उन वर्ड्स को हटा सके जो अनसंसदीय हैं, और ये जो राइट है ये भी बीजेपी ने अपनी तरफ से साइट किया है, कहते हुए कि जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी के थ्रू की गई थी संसद में वो डेफेमेटरी थी नेचर में और आपत्तिजनक जो थी वो बयानबाजी की गई थी, इसीलिए वो स्टेटमेंट जो है हटाई गई है। तो सबसे पहले हमने इस पर क्या कुछ जानकारी प्राप्त की है, ये भी एक बार सुनिए। Under the rules, the speaker has the power to expunge words and expressions from a speech if he finds that those words and expressions are undignified, unparliamentary or indecent and so on. It is not that a member cannot make an allegation. That is not the case. But member has to take the responsibility for what he says. And the past rulings have made it clear that a member should not merely depend on a paper report for making an allegation in the House. He should make an inquiry on his own, and he should be convinced about the truth of that or veracity of that.
तो देखिए, अगर हम स्पीच के एक्सपंजमेंट की बात करें तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा या राज्यसभा में हुआ हो, क्योंकि पहले अगर हम खुद प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे मनमोहन सिंह, उनकी भी कुछ ऐसे जो है स्पीचेस हैं जो एक्सपंज किए गए थे। तो अगर हम 2020 के फरवरी की बात करें तो एक जो वर्ड है वो एक्सपंज किया गया था प्रधानमंत्री की खुद की स्पीच से। ये उस समय की बात है जब प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन पर राज्यसभा में तंज कसा था एनपीआर के मुद्दे को लेकर। वहीं 2018 में प्रधानमंत्री के जो कुछ कमेंट्स थे बीके हरिप्रसाद को लेकर, उसमें से भी जो है कुछ शब्द जो है हटा दिए गए थे। और वहीं 2013 में भी जो कुछ शब्द थे वो एक्सपंज किए गए थे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, उनके कमेंट्स में से वो कुछ वर्ड्स एक्सपंज कर दिए गए थे क्योंकि वो डेफेमेटरी थे नेचर में। और ये तब की बात है जब एक डिबेट हुई थी उनके और अरुण जेटली के बीच कुछ मुद्दों को लेकर। तो देखिए, ये ऐसा पहला वारदात नहीं है या मौका नहीं है कि जो वर्ड्स हैं वो एक्सपंज नहीं किए गए, पर इस पूरे मामले पर इस समय जो है सियासत तेज है और अब ये देखना होगा कि स्पीकर इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर उनको एक लेटर लिखा है।